कितना वजन हो गया तुम्हारा? Let me bring you down to the map here. This is Atacama Desert, somewhere San Pedro de Atacama, where the accident happened. And we came to Salar de Uyuni. From Uyuni, we moved to Potosi, where we saw the mining and that carnival. From Potosi, a short ride further to Sucre, where we spent 2 nights in Sucre. From Sucre, we drove straight to La Paz. एक मिनट, लास्ट टाइम तो पोटोसी में थे, ये सूक्रे और लापाज कब हुआ और अभी कहाँ पहुंचे हैं? It's been now 3 months into the trip, 3 months, 3 days, 4 days, something like that. Every day just motorbiking, riding the entire day, shooting while riding, and I'm feeling tired now. Sometimes I don't even have desire to put the camera on. Over and out, see you there, Tango Charlie, copy that. And I think that started happening after the accident in San Pedro de Atacama. But the moment I entered Bolivia, that desire to shoot just went away somewhere. And I have been trying to push myself, really pull something out of me, pull a rabbit out of the hat and shoot something. But it's just not happening. इसलिए पोटोसी में पूरा संडे बस रिलैक्स किया, दोस्तों के साथ चिल मारा और अगले दिन माइंस में गए, जिसे देखकर हमारी बुद्धि की चवन्नी और गिर गई। निकलते निकलते 2 बज ही गया था और सूक्रे लगभग 150 किलोमीटर था। Get to the world's richest city at a time. Or at least the richest city of Spanish Empire at a time. Let's see if these guys will sell fuel to me. This is a second fuel station. Necesito más o menos 8 o 10 litros. A 8 litros. 8 o 10 más, o solo 10, eso. ¿Factura? ¿Qué quieres? Well, she sold the fuel at almost the double cost, a little more than double rather. This whole situation of Bolivia and its fuel, seriously. In Uyuni, she registered me at this fuel station. So ideally, I should get the fuel at the cost that they're asking, but no, seriously. And then I had to pay in cash. But anyways, these are the gringo prices. So yeah, even though I'm not a gringo, in fuel situations I am. More or less it's sorted, so we have got a full tank of 16 liters and 12 liters, 11 and a half in the fuel bag. So I don't see any problem happening, but let's see how it turns up in Sucre. पोटोसी देखकर समझ आ गया था कि 15-16 सेंचुरी में इन माइंस के ओनर्स यहाँ तो नहीं रहते थे, वरना इस शहर की हालत ये नहीं होती। सुखी लाला की हवेली बिरजू की झोपड़ी से दूर ही थी। Like whatever this is, city, town or anything, I just so wanna get out of this place. Don't ask me why, because I also don't know. A word of warning, ये ब्लॉग पॉलिटिकली सोशली हैवी है क्योंकि मैं इस दुनिया के बारे में सोच रहा था इस दिन, तो थोड़ा लंबा बोलूँ, सुनेंगे? सब कहते हैं कंज्यूमर को चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए तभी बनना बंद होंगी, फिर चाहे वो प्लास्टिक हो, नॉन वेज हो, फास्ट फैशन या प्रेशियस मेटल्स। बट मार्केट इकोनॉमी का क्या? बाज़ार और बाज़ारवाद का फ़र्क। बाज़ार ज़रूरत पूरी करता है, बाज़ारवाद जो ज़रूरत नहीं है उसे पैदा करता है। सिल्वर और डायमंड इंडस्ट्री ही ले लीजिए, एक्सक्लूसिविटी का भोंडा नाटक, हीरा है सदा के लिए, ये लाइन टैप इन करती है हमारी इनसिक्योरिटी में। जैसे हीरा खरीद लेंगे तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के साथ हमारी सारी इनसिक्योरिटीज भी खत्म हो जाएंगी। एवरी गर्ल नीड्स अ डायमंड, डज शी? हाउ अबाउट सम लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट? ऐसी कोई कमी भी नहीं है हीरे की दुनिया में, साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रेशियस मटेरियल भी नहीं है, रिसर्चर्स कहते हैं। पर मार्केट ने एक नैरेटिव बना के बेचा है हमें, फीड किया है हमारे अंदर कि बवासीर का रामबाण इलाज यही है। ब्लड डायमंड देख लीजिएगा एक बार। और ये सब मुझे क्यों पता है? क्योंकि नेदरलैंड्स जहाँ मैं रहता हूँ और साउथ अफ्रीका जो एक टाइम पे दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर था, इन दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। अभी आगे और बात करेंगे। Sucre. Esta moto es. Móstrame su entradita de lo que hace frontera de la moto. El papelito, nada más. No. Chile, Argentina, Bolivia, sí. Claro. Entonces entró por Villazón también. Holanda. Sí. No, de que oficial. Está todo bien. Todo Gracias.
Adelante, por favor. No es problema. La persona que le pida estos documentos no tiene ningún costo en ningún lado aquí. Ok. Solo le piden para verificar la moto y la persona que está conduciendo. Ok, solo fotocopia. Sí, solo es mostrar. Ok. O sea, la aduana no le cobra nada. Sí, sí. Los peajes aquí en Bolivia no se pagan tampoco. Ok. En moto no se pagan. Se paga, pasa un costadito y no tiene costo. 50 kilómetros. 50 kilómetros. Sí. No mucho. No, está cerca. No mucho. Buen viaje. Gracias. Repítelo la foto ahí. Muy linda tu moto. चलो उनका भी एंटरटेनमेंट हो गया और क्या. फिलहाल तो हम बाजार पोटोसी से बाजारवाद के गढ़ सूकरे आ चुके थे। सुखी लाला की हवेलियाँ यहीं हैं। किसी जमींदार की कोठी थी ये बिल्डिंग, जो आज एक पार्टी हॉस्टल है और ट्रैवलर्स को नाश्ते में पंचामृत के ऊपर ग्रेनोला, चिया सीड्स और कॉन्फ्लिक्ट फ्री एवोकाडोस खिला रहा है। हमने हॉस्टल चेंज कर लिया था जब उनने कहा कि पूरी रात यहाँ पार्टी होने वाली है। Liquidación de relojes digitales a 10 bolivianos. Liquidación de termos digitales. खैर साहब शहर में निकले। पहली मंजिल थी एक शानदार हवेली जहाँ सुखी लाला की खानदानी पुश्तैनी चीज़ें, हीरे जवाहरात, धन दौलत की नुमाइश लगी है। अंग्रेजी में प्राइवेट एग्जीबिशन। So I came to this place called Museo del Tesoro, which basically means a treasury museum. Like how, and I'm expecting to learn something about the money flow, the minings, how the riches from the mining actually made this city or made the owners of the mines affluent. I'm not allowed to take any photographs, film anything inside. जब मोटा भाई के 27 माले से उतरकर धारावी की गलियों में आए तो जिंदगी का विरोधाभास सामने खड़ा था। सूक्रे बोलिविया की जुडिशियल कैपिटल है। कॉलोनियल आर्किटेक्चर से इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस साफ झलकती है। एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था सूक्रे। ¿Tú eres valiente? ¿Tú eres fuerte? ¿Tú eres inteligente? ¿Y tienes un corazón inmenso? Entonces, abrázame, por favor. Gracias. Que seguramente. और बोलिविया के फ्रीडम स्ट्रगल की दास्तान भी सुनाता है सूक्रे। उसको डेडिकेटेड एक म्यूजियम भी है, द फ्रीडम हाउस। पूरा म्यूजियम शूट किया था बहुत अच्छे से। फुटेजेस गलती से डिलीट हो गई। थकान, चिड़चिड़ाहट, लापरवाही, जो मर्जी कहिए, तीनों ही सही हैं। साहिर लुधियानवी का शेर है ना, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। डियर सूक्रे, तुमसे दोबारा मिलने का मन नहीं है। And I think the break point came somewhere around La Paz 5 or 6 days ago when I was in the middle of the capital of Bolivia, La Paz. Después gasolinería. Muchísimas gracias por la visita, que te vaya bien. Gracias, señor, gracias. Te cuidas, ¿ya? Mucho gusto. क्या हो गया यहाँ सुबह सुबह? क्या चाह रहे हो? अल्लाह कसम, वो देखो दूर तलक लाइन लगी है। सोच रहा था 8:30 तक निकल जाऊंगा, साला 9 बज गया निकलते निकलते। आज है कम से कम शाम को 7-8 बजेगा पहुंचते पहुंचते। ओचो ओचो ocho. So necesito
6 o 7 litros solo. Moto es de Holanda, soy de la India. ¿De la India? De la India. Muy lejos, muy lejos. Al otro lado. Lejísimos. Directions 554 kilometers, 10 hours. Adios, amigo. Gracias. In La Paz, we have 2 days, and after that is something which I wanted to do for a very long time, and not many people do it. The history behind this city, in terms of it being the political capital of Bolivia. Bolivia has 2 capitals, by the way, La Paz and Sucre both. Where Sucre being the political capital. सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है. It's the morning rush and we are right in the middle of it. And I am an Indian. I do not drive on left. I ride on whatever is left. Rukhsana chal jana. I'm not sure if you can see. Oh, fucking hell. बच गए. It was my fault. I was riding on the left with him, right behind him. लग रहा है लखनऊ हाईवे मलियाबाद से निकल रहा है. Okay. Jesus. Yeah, Jesus. Mr. Jesus, please do something. Please do something about this country. Help them. देखो जरा इसको. इंडिकेटर पता है किसको कहते हैं? The entire road today, entire 550 kilometers are going to be like this. I have taken this task now to do it in one day, but there is no speed, to be honest. I'm averaging what, 50-60 kilometers an hour. दिन तो लंबा होने वाला ही था. कहने को तो बीच में एक जगह रुक सकते थे, मगर हॉस्टल बुक कर लिया था लापाज में और दिन बचाने थे. कहीं पहुंचना था. So you wanna go to a new dimension? In the last 150 kilometers, there has not been a single straight patch for 1 minute. It has constantly been like this, and I'm not assuming it's going to change in the next 400 as well. ज़्यादा शूट वूट करने का मन नहीं था. मैं भला मेरे ख्यालात भले. तो आपको ख्याल नंबर 2 से रूबरू कराते हैं. प्लास्टिक यूज़ का ठेका जनता पर ही क्यों है? फिर आप कहोगे ठेले वाला देता क्यों है? अरे जितने मजबूर आप हैं उतना ही मजबूर वो भी है, क्योंकि फिर आप सामान नहीं लोगे उससे. प्लास्टिक यूज़ को कम करने का रास्ता भी कैपिटलिस्टिक है. 5 रुपए दो और पन्नी खरीदो. सर वुड यू लाइक अ शॉपर? आइला इज्जत मिली. कार की डिग्गी से थैला कौन निकाले? थैली चमकीली हो तो लगता है किस्मत चमक रही है. 12 पन्नी लेकर माचा सड़कते हुए मॉल में नहीं टहले तो फायदा क्या? गवर्नमेंट प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स को सब्सिडाइज, सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करती? एंड जनता को समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए सीरियस अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों नहीं चलाती? कोविड से निपटने के लिए वैक्सीन भी ज़रूरी थी और अवेयरनेस भी. हर जगह थैंक यू के पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स लगे हैं अवेयरनेस के नाम पर. कौन कहता है कैनवासिंग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होती है? ये नैरेटिव कैंपेनिंग नहीं है तो और क्या है? नहीं है मेरे पास कुछ खाने के लिए. देखो Yeah, it's been what, almost 4 hours now on the bike, and we are 230 kilometers in, and I don't think the bike is consuming fuel a bit conservatively. We need to reach Oruro and try to find a fuel station that gives me fuel at double the price or even more. Hi. ¿Qué es tu nombre? Víctor. Soy Sunny. Sunny. Hablo poquito español, sino lento hablar. ¿De dónde viene? Hoy. Ahora La Paz. Gracias.
gentlemen, welcome to Oruro, en route La Paz. And we have done around 350 kilometers from now. In the last 100-ish kilometers, the GoPro battery was dead and I was a little lazy to change it. I was like, when I reach Oruro or somewhere I stop for fuel, then I will change. And anyway, it's a boring asphalt. ओरूरो से लापाज अभी भी 225 किलोमीटर्स था। अब कहने को कुछ तो हैपनिंग हुआ, बारिश, पर क्या ही रोना रोए उसका, पार्ट ऑफ द गेम। और ऐसा कुछ नया दिख भी नहीं रहा था, वही गरीबी, मुफलिसी, कमतरी की जिंदगी चारों तरफ। तो आइए ख्याल नंबर 3 से मिलिए, फास्ट फैशन। कपड़ों का रंग फीका नहीं होता, ट्रेंड और टेस्ट दोनों बदल जाता है। फिर चिपका देंगे एक फील गुड वर्ड उसके आगे, सस्टेनेबल। अमा फैशन जैसी चीज़ कभी सस्टेनेबल हो सकती है जहां लोगों का टेस्ट डूम स्क्रोलिंग की स्पीड से चेंज होता है। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया, चाइना की स्वेट शॉप्स में बने इन कपड़ों की शॉपिंग करने से ये वो कल्चर कतराता नहीं है, वाकई में पिघल जाना तो ग्लेशियर। एक और बवाल है, कहीं कहीं देखा होगा ना, कपड़ों के टैग्स पर लिखा होता है मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक। कई केसेस में इसका मतलब ये नहीं है कि वो कपड़ा रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना है, अरे वो टैग रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना होता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। याद है हम अटाकामा डेजर्ट गए थे चिले में। एक्सीडेंट की वजह से मैं उस लोकेशन पे जा नहीं पाया था, एंटोफागास्ता, जिसके पास दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल लैंडफिल है। इतना बड़ा जिसे स्पेस से देखा जा सकता है। यूएन ने सोशल एंड एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है उसको। 44 मिलियन टन कपड़ा हर साल डंप होता है वहाँ, मोस्ट ऑफ इट अनयूज्ड एंड टैग्स ऑन। क्या बोले? रिसाइकलिंग। दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ भी नहीं है वो, वर्तमान आंखों का धोखा। La Paz, a very, very bizarrely established city, not the kind of a capital city that you would imagine like a megapolis. It's like right in the middle of the valley as the center of the town, whilst everything around is on the slides, on the steepness of the mountains. Hi, senor. Camina salada. Ahí paso, alzando 15. Quiero pasar, señor. Necesita llave. ¿Eh? Llave necesita. Yeah. Gracias. This is some next level steep, man. Some proper next level steep. Baap re baap. I'm just blown away by this place already. Oh, दो डॉगी. No worries, सब फटी में चला रहा है. Like I'm getting down the entire mountain at this moment. वापस चढ़ने में जब फटेगी ना मेरी. Like sometimes I just finish off riding the entire day, go back to the hotel room, and have absolutely no desire to even look at the camera. I was standing at a wrong place. So finally some guy from the bus told me that you have to go to the next two quadras, blocks, and then take the bus going in the opposite direction. But here you don't see many big buses, these small mini bus and vans that just take you from one place to another, and it's very cheap. 2 or 3 Bolivianos. Not even half a cent in euros. Let's see.
याद है अटाकामा में एक्सीडेंट के बाद मार्कोस और एंडी 2 भाई मिले थे। 2 कन्यास भी मिली थीं, टेस और एना। ये दोनों देवी जी नेदरलैंड से हैं और हमसे टकरा गईं लापाज में। What are you gonna do? Just chasing you. The bad stories about it, and also like with the women rights. I don't want to be in a country where the rights from women are just not good, you know. So I feel like that's always been a big thing with India as well. That I was always like, okay, that's not really a country I want to go. Yeah, India is not a country that has a midway, for an example. That's the way I see it. It's right in your face. Yeah. You have to keep your elbows out Yeah. for India. And at some point in time, the veil starts going off, and then you start appreciating or seeing what India actually is. Yeah. But it comes with its own pitfalls, if I can use the word. Its own difficulties as well. And all it's true that there are horrendous stories around the media, horrendous stories that are done to travelers. But again, that's not the entire country. No. So in my opinion, as an Indian, I can only say that to you, that go travel. Again, common sense prevails, Yeah. and you will find more people helping you Yeah. than more people trying to trouble you. Yeah. Yeah, I believe that. Yeah, listen to the stories, but again, Be careful. what you need to take out from the stories is how to avoid those situations. Yeah. And sometimes you just can't. Sometimes shit happens with you. I understand that. Yeah. But that should not hold you back, because India is as dangerous as Southeast Asia in some senses. Yeah. कुछ 7-8 घंटे बैठ के हमने बातें करी। Do you have some nice filters as well? We're in an interview right now. We're talking about pregnancy right now. कतई मन नहीं है पर जाना पड़ेगा। चलो। बट ओवरऑल मैं थक चुका था एंड क्रिएटिवली डिससैटिस्फाइड भी था। आई बैडली नीडेड सम रेस्ट। सूकर की फुटेजेस मिस होने से अपने ऊपर गुस्सा भी था और दोबारा ये ना हो इसलिए न चाहते हुए भी एक काम करना पड़ा। I had to distance myself from the cameras to come back to them with a fresh mind and approach. I just shut everything down for 4 or 5 days to relax a little bit. मेंटली शांत होना बहुत ज़रूरी था। देखिए तो पिछले 1 महीने में हम ट्रैवल किन जगहों पर कर रहे हैं। There are some mines as well. Ingreso a mina Tres Quebradas. मिनरल्स एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं, लिथियम माइनिंग, ट्रेन सेमेट्रीज, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन। एंड जैसा हमको बताया जाता है कि ये लोकल लोगों के बेनिफिट में है, ऐसा है भी नहीं। अगर आप डेलुलू नहीं हैं तो ये सोशल एंगल से चीज़ें देखना ग्रोज हैवी ऑन यू। ये सो कॉल्ड रेडिकलाइज्ड डेवलपमेंट ही सारे फसाद की जड़ है और साउथ अमेरिका में इसका सीधा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अमेज़ॉन पर। I know अब्रप्ट एंडिंग है, I know उसका कारण भी बड़ा अजीब सा है। तो आइए इनसाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो हुआ क्या, जब ये वाला एपिसोड बनाना शुरू किया तो ये और इसके अगला वाला दोनों एक साथ सोचा था बनाने की, और वो बन रहा था करीब 40-45 मिनट का पूरा एक लंबा सा एंजाम्बल, टू लॉन्ग फॉर अ यूट्यूब वीडियो। तो फिर उसको काटा और फिर दोनों स्टोरीज अलग अलग डेवलप करी हैं किसी तरह जोड़ करके, और फिर ये आइडिया आया कि रोड टू अमेज़न पार्ट 1 एंड रोड टू अमेज़न पार्ट 2। तो इसीलिए ऐसा हुआ है। अगले एपिसोड आप देखोगे तो उसमें कहानी जुड़ी हुई मिलेगी आपको। एक और अंदर बात बताते हैं, सोच रहा हूँ मैं आपको ऐसे इनसाइड इन्फॉर्मेशन बिहाइंड द सीन्स की नगेट्स देता रहूँगा। सूकरे की जो फुटेजेस लॉस हुई थी वो मुझको अभी पता लगा है आकर के, जब मैंने ये एडिट करना शुरू किया है। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था, और हम इतने चतुर रामालिंगम है, हमने दुनिया को समझा दिया मोटो ब्लॉग बनाओ तो फुटेज बैकअप करो, तो ये करो कि देखते रहो कि फोकस लॉस हो जाएगा, कि ये सब समझा दिया दुनिया को। मगर वो सब हेल्प करता है वैसे, पर आप मुझे भी पता लगा तो मैंने भी गलती करी है ऐसी। और कहानी उसकी ऐसी थी कि जो सूकरे की फुटेजेस थी ना, वो एक्चुअली जो फ्रीडम हाउस है उनका, वो उनके लिबरेशन को, उनके फ्रीडम स्ट्रगल को डेडिकेटेड पूरा एक म्यूज़ियम है। वहाँ पर आपको पूरी कहानी जानने को मिलती है। और एक और नगेट है कि बोलिविया में स्पेशली 25 de Mayo 25 मई नाम से कई सारे चौराहे हैं, गलियाँ हैं, सड़कें हैं, और वो एक ही नाम है 25 मई 25 de Mayo। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस दिन कोई एक बहुत तगड़ा सा फ्रीडम रिवॉल्ट, फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट स्पेनिश एम्पायर हुआ था। तो मेरा इनिशियल आइडिया ये था कि मैं उसको जब शूट करके आया था तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जैसे 1857 की क्रांति मान लीजिए, है ना, तो उसको और इनके लिबरेशन स्ट्रगल के डे को ऐसे जोड़ करके कहानी सुनाऊंगा, जैसे मैंने बोलीविया की हिस्ट्री सुनाई थी पिछले वाले एपिसोड में, वो ट्रेन माइनिंग एंड ऑल वाली। तो वैसा आइडिया था, पर वो सारी फुटेज ही लॉस हो गई। तो अब देखेंगे क्या करते हैं, फिर कभी सुनाएंगे किसी और फॉर्म में। तो ऐसा है। तो ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। और एक गुजारिश ये भी है आपसे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है प्लीज़ कर दीजिए। एक और बड़ा गुजारिश आपसे ये है कि आप
अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इनको ये एपिसोड तो काटिए पीटिए, जो करना है करिए इसका और उसको सर्कुलेट करिए। मालूम है शेमलेसली मांग रहा हूँ, पर बहुत ज़रूरत है इन ट्रैवल लॉग्स को बाहर पहुँचाने की, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और काम करने के लिए। थोड़ा सा डिप आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें हैं। बस बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी ये रहा हमारा डिजिटल कटोरा, देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जो पसंद आए। सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आंटी अंकल चाचा फूफा ताऊ नाना सबको भेज दीजिएगा। बस आगे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, रोड टू अमेज़न पार्ट 2, और उसके बाद जाएंगे अमेज़न जंगल, जो बनेगी तगड़ी डॉक्यूमेंट्री, मुझे पता है अभी से वो बनेगी 40-45 मिनट की आराम से। सो आई कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। अभी के लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतने ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, चाओ चाओ, हस्ता ला विस्ता, बाय।